Good morning, dear students. This is the sixth part or sixth lecture on the chapter The Making of the National Movement 1870s to 1947. In the previous lecture, we had discussed about that the Gandhiji launched civil disobedience movement in 1930 and how he walked from his Sabarmati ashram to the coastal town of Dundee, and there ceremonially he broke the salt law. And after this movement in 1935, the Government of India Act was passed, and under the Government of Indian Act, a provincial autonomy was given to the Indian government, and in 1937 the provincial legislature election was announced. And in that election in 1937, the Congress party formed government in 7 provinces out of 11 provinces. 11 में से 7 provinces में कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया था, and the Congress party ruled all those 7 provinces up to 2 years. After 2 years, in September 1939, Second World War broke out. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, कांग्रेस पार्टी agreed to support the British government, but there was a condition. कंडीशन क्या था? The British government would be guaranteed India as an independent country, but the British government denied to accept the condition. So the Congress ministers, those who were formed the government in the 7 provinces out of 11, they all resigned in the protest of the British government. Now let us see the next topic. The next topic is Quit India movement. So during the Second World War started in 1939 and ended in 1945. In the mid of Second World War, Gandhiji launched another phase of movement, that is Quit India movement. तो गांधी जी ने क्या सोचा? In 1942 August, in between the Second World War, Gandhiji launched Quit India movement. And according to him, the British must quit India immediately. अभी के अभी Britishers को India छोड़ के जाना चाहिए. And for them, he said the people, the very famous slogans of Quit India movement was do or die, करो या मरो. तो किसी भी हालत में अभी हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया में से भगाना पड़ेगा. But keep in mind, you must fight. But keep in mind that it should be in a non-violent way. क्योंकि गांधी जी वायलेंस में बिलीव करते ही नहीं थे. चाहे करो या मरो, चाहे ब्रिटिशर्स को अभी कभी इंडिया में से भगाओ, लेकिन एवरीथिंग शुड बी इन अ नॉन-वायलेंट वे. तो गांधी जी का ये जो मिशन था, मूवमेंट था क्विट इंडिया, इसमें बहुत सारे यंग पार्टिसिपेंट्स थे. That movements attracted peasants, youths who gave up their studies and joined the movement to get India free. तो इसलिए ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डर भी गए थे. तो बहुत सारे लोगों ने ये नेशन वाइड, कंट्री वाइड मूवमेंट शुरू हुआ था, और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत डर गए थे. इसलिए 1943 में, एक साल के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लीडर्स को फिर अरेस्ट करने लगे. एंड नॉट ओनली लीडर्स, 90,000 people were arrested and put into jail. जब गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया था, लॉन्च किया था, तुरंत ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिए थे. नॉट ओनली गांधी जी के साथ और भी लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिए थे. बट द फॉलोअर्स, दे डिड नॉट स्टॉप देयर. They continued the movement, and the movement took a shape, a very furious shape. इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गए थे. 90,000 people were arrested and around 1,000 were killed in पुलिस फायरिंग में मर भी गए थे. And that movement, the Quit India movement, ultimately it brought the British Raj, British rule to its knee. ब्रिटिशर्स को इंडियंस के सामने घुटना टेकना ही पड़ा आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट. अब क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ और एक इवेंट है विच आई वांट टू टेल यू. हैव यू हर्ड अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस? यस.
Netaji Subhash Chandra Bose, actually his name was Subhash Chandra Bose. He was a very good leader, a radical leader, and a very educated, learned, intelligent person. That is why people lovingly used to call him Netaji. And from that he got the, you can say Netaji, from the loving of the people. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस he born in Calcutta. तो उन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. ही रेस्पेक्टेड गांधी जी a lot, लेकिन वो नॉन वायलेंस में विश्वास नहीं रखते थे. उनको लगता था if we Indians want to get rid of Britishers, if we want to get independence, देन हमें वायलेंट होना ही है. ब्रिटिशर्स को अगर हमें भगाना है तो हमें वायलेंट होना है, हमें छीन के लेना है, प्लीड करके, रिक्वेस्ट करके हमें इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स से कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा. इसलिए 1941 में सीक्रेटली वो कलकत्ता छोड़ के सिंगापुर चले गए थे, भारत, जर्मनी. एंड देयर he founded the फौज, that was called the आज़ाद हिंद फौज. द इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया था. एंड 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने अटैक भी किया था थ्रू नागालैंड होते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अटैक किया था. ऑल्दो इट वाज नॉट सक्सेसफुल, ही वाज अरेस्टेड एंड he was being trialed. So the people of the country was against the trial of Subhash Chandra Bose. अब next we will discuss about towards independence and partition. Independence and partition के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे. अब क्या हुआ, 1940 में मुस्लिम लीग अलग स्टेट के लिए, मुस्लिम के लिए अलग स्टेट का डिमांड करने लगे. अलग स्टेट मीन्स उस टाइम क्या था, ये दैट इज हियर यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया बिफोर पार्टीशन. ये पूरा इंडिया का मैप है. ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज गुजरात नाउ. इसके ऊपर ये जो पोर्शन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और यहाँ पे जो बंगाल लिखा हुआ है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इट वाज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम. तो इसलिए मुस्लिम लीग उस टाइम 1940 में अलग मुस्लिम स्टेट्स का डिमांड, इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स का डिमांड कर रहे थे इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. क्यों? बिकॉज दीज टू प्लेसेस वर डोमिनेटेड बाय मुस्लिम. मुस्लिम ने ये इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड क्यों रखा था, इसके पीछे भी रीजन था. क्योंकि जब 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड, और उसके बाद जब 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ था, जिस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 7 गवर्नमेंट फॉर्म किया था प्रोविंसेस में आउट ऑफ 11, उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग को अपने साथ में नहीं रखा था. मुस्लिम लीग वर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन द प्रोविंशियल इलेक्शन, बट कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग को साथ में नहीं रखा था. एंड दैट इज व्हाई दैट टाइम द मुस्लिम लीग दे बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड, दे बिकम वेरी एंग्री. तब उनको लगा कि हमें तो कभी भी कांग्रेस हमारा जो डिमांड है वो आगे आने नहीं देंगे, और कभी हमारा डिमांड को वो सुनेंगे भी नहीं. इसलिए मुस्लिम, क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी वाज डोमिनेटेड बाय हिंदू, सनातनी हिंदू, अपर कास्ट हिंदू से डोमिनेट करते थे, और वो मुस्लिम लोगों को एक साथ लाने में वो बिलीव नहीं करते थे, वो डिस्क्रिमिनेट करते थे. कांग्रेस पार्टी दैट टाइम मुस्लिम लीग को डिस्क्रिमिनेट किया था. तो अब क्या हुआ, तो 1946 में जब जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इलेक्शन हुआ, 1946 में जनरल इलेक्शन हुआ, उस टाइम कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. ये छोड़ के जो मुस्लिम्स के लिए जो इलेक्ट्रेट, सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया था, उसी इलेक्ट्रेट्स में आप मान लो इस वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, देन ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. जब मुस्लिम ने इस दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो मुस्लिम और भी रिजिड हो गए थे.
रिजिड हो गए थे। किस लिए रिजिड हो गए थे? सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम। अब क्या हुआ, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खत्म हो गया था, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स को लगा चलो ठीक है, अभी ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू हैंडल द मूवमेंट इन इंडिया, नो मोर दे वर एबल टू हैंडल। इतना ज्यादा मूवमेंट शुरू हो गया था क्विट इंडिया के बाद, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी एजिटेशन शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स इस हालत में नहीं था कि और भी कंटिन्यू करे, तो ब्रिटिशर्स ने मन बना लिए थे कि अब इंडिपेंडेंस दे के वो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने निगोसिएशन के लिए कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को बुलाया इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन उस टाइम कांग्रेस पार्टी भी रिजिड थी और मुस्लिम लीग भी रिजिड थी। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं देना है और मुस्लिम लीग को इंडिपेंडेंट स्टेट लेना ही है, इसलिए दोनों आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था। दैट इज व्हाई दैट नेगोशिएशन फेल्ड। उसके बाद फिर दोबारा क्या हुआ, 1946 में द ब्रिटिश कैबिनेट, 3 मेंबर्स को ब्रिटिश कैबिनेट ने भेजा था दिल्ली में इन दोनों का डिमांड देखने के लिए कि मुस्लिम लीग का डिमांड क्या है। उस टाइम मुस्लिम लीग के पार्टी था मोहम्मद अली जिन्ना, तो पार्टी का डिमांड क्या था, तो ये देखने के लिए 3 मेंबर्स कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ था फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे केम टू दिल्ली टू एग्जामिन द डिमांड। अब 16 अगस्त 1946 अब क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग ने देखा कि जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम लीग का एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तब मुस्लिम लीग ने देखा कि वो रिजिड हो गए, तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को एज अ डायरेक्ट एक्शन डे बाय द लीग अनाउंस किया था। डायरेक्ट एक्शन डे बाय द लीग मीन्स वो अपना मूवमेंट किस लिए, डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट, डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम के अलग स्टेट के डिमांड के लिए वो रिजिड हो गए थे। उस मूवमेंट को और भी मतलब मास मूवमेंट बनाने के लिए उस दिन 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का फिर कॉल किया था। इसलिए कलकत्ता में लेट मी शो यू, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री कलकत्ता यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, तो कलकत्ता में, यहाँ पे पंजाब में राइट्स शुरू हो गए। 1000 पीपल वर डाइड राइट्स में, वुमेन, मेन, चिल्ड्रन, कोई बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसलिए अल्टीमेटली बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट में वायलेंस शुरू हो गया, राइट शुरू हो गया, बहुत सारे लोग मर गए थे। अल्टीमेटली 3 जून 1947 पार्टीशन का प्लान हुआ था एंड पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस तो हमें मिला था 1947, 15 अगस्त हमें इंडिपेंडेंस मिला है, बट इंडिपेंडेंस की जो खुशी है वो खुशी हम एंजॉय नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि दैट इंडिपेंडेंस केम with the death of many thousand people on the both sides of the country। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, सिमिलरली इंडिया के साइड में भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। सो इट केम विद द पेन एंड वायलेंस। तो जितनी खुशी मिलनी चाहिए थी इंडिपेंडेंस की, उतनी खुशी नहीं मिली थी। तो जॉय ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्स्ड with the pain and violence of partition। So that is how the India divided into 2 parts। एक तो पाकिस्तान उस टाइम 1947 में पाकिस्तान हुआ था, ये वाला लेट मी शो यू, ये इस पोर्शन पाकिस्तान, और ये जो अभी बांग्लादेश है यहाँ पे, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 1947 में ये भी पाकिस्तान, ये भी ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये वाला पोर्शन। बाकी दिस वाज इंडिया। अब बांग्लादेश भी फ्यूरियस हो गए थे आफ्टर सम टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो 1971 में फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश हुआ था।
तो उस टाइम बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला। एक्चुअली उस टाइम बांग्लादेश तो था नहीं, ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिला एंड बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1971 दिसंबर में हुआ था। आई होप you understand the chapter. Thank you and have a good day.